Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. Before starting our session, we will do a short guided meditation. So sit back comfortably. Exhale fully. And with this exhale, completely relax your body. Exhale and release any burden that you carry in your heart. Feel completely light. I am a pure soul. I am very light. I rise above any situation in my life. Everything is perfect, whole, and complete at this present moment. Now, I have only this moment to live, to contemplate. There is no past or future, just this present happening. I am fully immersed in the present. I am enjoying my life and living but all is well in my world. My world is very beautiful. I am so blessed and grateful. My focus is the remember to be grateful for your body, for your mind, and the power that operates it. Be grateful for your heart that works 24/7 for you. Say, I am grateful to my heart and blood vessels. I am grateful to my nervous system. I am grateful for every atom that constructed my body and I am a powerful, healthy being and will always. I am happy soul. I spread happiness. All is well in my world. Thank you, thank you, thank you. And is to be grateful at least 3 times a day. Om Shanti.
You may open your eyes now. We will start book reading. Reading How to Become Successful in Buying and Selling. And it is stating today we will start from here is another very popular method used in selling homes, land, or any kind of property. Affirms slowly, quietly, and feelingly as follows. Infinite intelligence attracts to me the buyer for this home who wants it and who prospers in it. This buyer is being sent to me by the creative intelligence of my subconscious mind, which makes no mistakes. This buyer may look at many other homes, but mine is the only one he wants and will buy because he is guided by the infinite intelligence within him. I know the buyer is right, the time is right, and the price is right. Everything about it is right. The deeper currents of my subconscious mind are now in operation, bringing both of us together in divine order. I know that it is so. यहाँ पे हमें एफर्मेशन दी गई है कि अगर किसी को होम लैंड या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी तो वो ये एफर्मेशन रिपीट कर सकता है जो अभी हमने पढ़ी थी कि जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है वो मुझे भी और इस बायर को भी गाइड कर रही है। वो बायर जो है वो उसने कई सारी प्रॉपर्टीज देखी है पर मेरी प्रॉपर्टी ही वो इकलौती प्रॉपर्टी है जो वो खरीदेगा क्योंकि वो भी अपनी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से गाइडेड है। और यहाँ पे जैसे कि हमें फेयर होता है ना हमारे मन में डाउट्स आते हैं उसको क्लियर करने के लिए भी अफर्मेशन में कहा गया है कि मुझे पता है कि जो बायर है वो भी सही है, टाइम भी सही है और जो प्राइस मिलेगा वो भी सही है, सब कुछ सही है इस चीज के बारे में। और जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डीपर करेंट्स है वो ऑपरेशन में है और हम दोनों को मतलब जो मैं हूँ वो सेल कर रही हूँ और कोई अगर बाय कर रहा है तो हम दोनों को वो डिवाइन ऑर्डर में साथ लेकर आएगा। और मुझे इस बात का विश्वास है तो इस तरह से हमें अफर्म करना है। ये जो अफर्मेशन से ये काफी अच्छे है और इसमें फियर और डाउट को भी इरेज करने की बातें बताई गई है। तो जब हम अपने लिए भी अफर्मेशन क्रिएट करेंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। Remember always that what you are seeking is also seeking you. Whenever you want to sell a home or property of any kind, there is always someone who wants what you have to offer. By using the powers of your subconscious mind correctly, you free your mind of all sense of competition and anxiety involved while selling. This line को तो हमें underline करना चाहिए. Remember always that what you are seeking is also seeking you. तो जो हम खोज रहे होते हैं ना जो हमारे डिजायर होते हैं वो भी हमें खोज रही होती है। इस बात को याद रखना है। क्योंकि हमें क्या रहता है डाउट रहता है फियर रहता है कि वो कहीं चीज और ज्यादा दूर न चली जाए। तो इधर पे कहा गया है कि यू आर सीकिंग इज आल्सो सीकिंग। जब भी हम कोई होम प्रॉपर्टी कुछ सेल करना चाहते हैं किसी भी तरह की तो हमेशा कोई ना कोई होता है जिसको वो चीज चाहिए होती है, जिसकी वो वांट होता है। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को करेक्टली यूज करते हैं तो हम अपने माइंड को किसी भी सेंस ऑफ कंपटीशन और एंजाइटी से फ्री करके रिलैक्स कर सकते हैं। How she succeeded in getting what she wanted. There is a young lady who regularly comes to my lectures and classes. She had to change buses 3 times. It took her 1.5 hours each time to come to the lectures. In one lecture, I explained how a young man who needed a car in his work received
She went home and experimented as outlined in my lecture. Here is a letter in part narrating her application of my method and published by her permission. तो जो ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इनके जो लेक्चर्स होते थे उनको अटेंड करने के लिए एक यंग लेडी आती थी जिनको 1.5 आवर्स लगते थे, 3 बसेस चेंज करने पड़ते थे हमेशा, जो भी वो आती थी। तो एक लेक्चर था जिसमें ऑथर ने एक्सप्लेन किया था कि एक यंग मैन कैसे कार को अट्रैक्ट करता है, रिसीव करता है, जो कि उसकी नीड है। तो यहाँ पे उस यंग लेडी का लेटर है जो कि उसने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे ऑथर ने डायरेक्ट किया है। डियर डॉक्टर, दिस इज हाउ आई रिसीव्ड अ Cadillac car. I wanted one to come to the lectures regularly. In my imagination, I went through the identical process I would go through if I were actually driving a car. I went to the showroom and the salesman took me for a ride in one. I also drove it several blocks. I claimed the Cadillac car as my own over and over again. I kept the mental picture of getting into the car, driving it, feeling the upholstery, etc. consistently for over 2 weeks. Last week, I drove to your lectures in Cadillac. My uncle in Ingerwood passed away and left me his Cadillac and his entire estate. यहाँ पे इन्होंने जो यंग लेडी ने टेक्निक अप्लाई करी थी वो मेंटल पिक्चर वाली थी, कि पूरा उन्होंने डिटेल में सोचा जो कि वो करेंगी, अपनी कार के अंदर में वो जाएंगी, ड्राइव करेंगी, तो पूरा फीलिंग के साथ में उन्होंने उस चीज को इमेजिन भी किया। 2 वीक्स तक लगातार ये चीज करने के बाद उनके जो अंकल थे वो गुजर गए थे और उनके लिए अपनी कैडिलैक कार और एंटायर स्टेट छोड़ करके चले गए थे। तो इस तरह से उन्होंने अट्रैक्ट की थी अपनी कैडिलैक कार। तो विजुअलाइजेशन काफी इम्पोर्टेंट होती है। A success technique employed by many outstanding executives and businessmen. There are many prominent businessmen who quietly use the abstract term success over and over many times a day until they reach a conviction that success is theirs. They know that the idea all the essential elements of success. Likewise, you can begin now to repeat the word success to yourself with faith and conviction. Your subconscious mind will accept it as true of you, and you will be under a subconscious compulsion to succeed. You are compelled to express your subjective beliefs, impressions, and convictions. What does success imply to you? You want undoubtedly to be successful in your home life and in your relationship with others. You wish to be outstanding in your chosen work or profession. You wish to possess a beautiful home and all the money you need to live comfortably and happily. You want to be successful in your prayer life and in your contact with the powers of your subconscious mind. You are a businessman also because you are in the business of living your businessman by imagining yourself doing what you long to do and possessing the things you long to possess. Become imaginative, mentally participate in the reality of the successful state, make a habit of it, go to sleep feeling successful every night and perfectly satisfied, and your subconscious and you will eventually succeed in implanting the idea of success in your subconscious mind. Believe you were born to succeed, and when this will happen as you pray. Major heading a success technique employed by many outstanding executives and businessmen. इसमें ऑथर ने समझाया जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस से रिलेटेड प्रोफेशन होता है वही नहीं, हम लोग सभी बिजनेसमैन हैं। किस सेंस में? क्योंकि हम भी बिजनेस ऑफ लिविंग सक्सेस सबको चाहिए होती है, वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो।
हम सबको सक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि अगर हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो हम खुद को इमेजिन कर सकते हैं वो सारी चीजें करने के लिए सक्सेसफुली हम कर पा रहे हैं। जो पोजीशन हमें चाहिए वो सारी चीजें हमें मिल रही हैं। इस तरह से जब हम इमेजिन करते रहेंगे, बिकम इमेजिनेटिव, हम इमेजिनेटिव बनेंगे, मेंटली पार्टिसिपेट करेंगे, तो और एक हैबिट बना लेते हैं हम उस चीज को। सोने जाएंगे तो फीलिंग सक्सेसफुल एवरी नाइट। यहाँ पे नाइट टाइम का क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, अभी तक हम ये चीज समझ चुके हैं ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों होते हैं हमारे। तो कॉन्शियस माइंड जो कि ज्यादा लॉजिकल होता है, जब भी हम अपने माइंड में कोई थॉट डालते हैं, कोई डिजायर होती है, अफर्मेशन डालते हैं, तो वो रियलिटी को देख करके लॉजिक लगाता है कॉन्शियस माइंड, इसीलिए हम पूरी तरह से उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। और रात के टाइम पे क्या होता है, जस्ट बिफोर स्लीपिंग हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा थोड़ा इनएक्टिव होने लग जाता है, तो उस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो आइडिया बहुत अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं कि जो हमें इमेजिन करना है, अफर्म करना है, वो हम नाइट टाइम पे करते करते सो जाएंगे तो काफी पावरफुल हो जाएगा। एक तो नाइट टाइम, और एक सुबह सुबह उठने के बाद। उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं रहता, सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है, तो जब भी हमें कोई थॉट डालने होते हैं तो इन दोनों टाइम पर हम इम्प्लाइड करेंगे आइडिया ऑफ सक्सेस। और हमें ये विश्वास रखना है कि we were if we were born to succeed, इसके बाद में वंडर्स हैपन होंगे जैसे जैसे हम प्रे करेंगे। तो प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स, इस चैप्टर के कुछ प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स हैं, कुछ समरी है जो हम अभी एक बार वापस कर देते हैं, कुछ लोगों ने आज भी ज्वाइन किया, न्यू है जो कि, तो इनके लिए समरी हो जाएगी। सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल लिविंग व्हेन यू आर पीसफुल, happy, joyous, and doing what you love to do. You are successful. सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई बिजनेस करियर में सक्सेस नहीं, सक्सेस पूरा सक्सेसफुल लिविंग, हम किस तरह से जी रहे हैं उसमें हमें सक्सीड करना है। जब हम सक्सेसफुल हैं इसका मतलब क्या है कि हम पीसफुल है, हैप्पी है, जॉयस है, और हम क्या कर रहे हैं जो हम करना पसंद करते हैं, तब हम सक्सेसफुल। Find out what you love to do, then do it. If you don't know your true expression, ask for guidance and the lead will come. जैसे जब हमने सक्सेस के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें 3 स्टेप्स पढ़े थे लास्ट वीक। तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही था कि हमें पहले खोजना है जो चीज हमें पसंद है करना, और फिर उसे करना है। ऐसा हो सकता है कि हमें पता ही ना हो हमें क्या करना पसंद है, तो ऑथर ने बताया था कि ऐसे टाइम पर हम गाइडेंस सीख कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, और फिर हमें वो आइडिया मिल जाएगा किसी भी तरीके से। Specialize in your particular field and try to know more about it than anyone else. सक्सेस का सेकेंड स्टेप ये था कि जो हमें करना पसंद है उसमें हमें स्पेशलाइज करना है, एक्सेल करना है, हमें ऐसा ट्राई करना है कि जितनी भी नॉलेज है उस फील्ड को लेकर वो सब हम अटेन कर पाए, तो हमें एकदम एक्सेलेंट बनना है उस पर्टिकुलर फील्ड में। बट his main desire in life is to serve humanity. तो थर्ड स्टेप होता है कि जब हम सक्सेसफुल, अगर हम सक्सेसफुल हैं, सच्चे मायने में हम सक्सेसफुल तभी कहे जाएंगे कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये मेन डिजायर होती है ना। देयर इज नो ट्रू सक्सेस विदाउट पीस ऑफ माइंड। और एक जरूरी चीज है, विदाउट पीस ऑफ माइंड, अगर आप खुद ही अशांत है तो फिर कोई ट्रू सक्सेस नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि सक्सेस एक जर्नी है, वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब हमने कुछ अचीव कर लिया, सिर्फ वही सक्सेस नहीं। पर उस चीज को अचीव करने के टाइम पर हमारी क्या कंडीशन रही, हमारी मेंटल कंडीशन, हमारी फिजिकल कंडीशन, हमने खुद का ध्यान रखा कि नहीं, हम अपनी लाइफ में और चीजों का ध्यान रखा कि नहीं, हम पीसफुल थे कि नहीं,
ये सब भी मैटर करते हैं। इसीलिए when you are peaceful, happy, joyous and doing what you love to do, you are successful. A successful man possesses great psychological and spiritual understanding. सक्सेसफुल वही होता है जिसके पास वो ग्रेट साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. If you imagine an objective clearly, you will be provided with the necessities through the wonder working power of your subconscious mind. अगर हम इमेजिन कर सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव को क्लियरली, मतलब कोई हमारी डिजायर है, जैसे यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में लिखा गया था, तो हम इसको अगर क्लियरली इमेजिन करते हैं, तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वंडर वर्किंग पावर होती है, वो हमें उन सारी चीजों को मतलब इन सारी चीजों को अटेन करने के लिए रास्ते दिखाती है, अपॉर्चुनिटीज मिलाती है, वो सारी नेसेसिटीज हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम उस चीज को अचीव कर पाए. Your thought fused with feeling becomes a subjective belief, and according to your belief, is it then into you? तो एक तो हमारी थॉट होती है, हमारे माइंड में कोई थॉट आ गई, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस चीज को फील करने लग जाते हैं. तो जब हमारी थॉट के साथ साथ में फीलिंग भी होती है, जैसे कोई संकल्प, कोई एफर्मेशन कि आई एम अ पीसफुल सोल, अगर इसको सिर्फ मंत्र की तरह रट रहे हैं, गुस्सा करते करते रट रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है. लेकिन अगर हम ये चीज बोलते बोलते सच में फील करें, खुद को इमेजिन करें कि हम एकदम पीसफुल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्टिव बिलीफ हो जाएगा. सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत, ये हमारा पर्सनल बिलीफ हो जाएगा, और जैसा हम बिलीव करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा. The power of sustained imagination draws forth the miracle working powers of your subconscious mind. अगर हम सस्टेन्ड इमेजिनेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड की जो मिरेकल वर्किंग पावर्स होते हैं, फिर वो हमें उस चीज को अटेन करने में हेल्प करती है. इफ यू आर सीकिंग प्रमोशन इन योर वर्क, इमेजिन योर एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर और loved one congratulating you on your promotion. Make the picture vivid and real. Hear the voice, see the gestures, and feel the reality of it all. Continue to do this frequently, and through frequent occupancy of your mind, you will experience the joy of the answered prayer. एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें प्रमोशन चाहिए अपने काम में, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयर है, सुपरवाइजर है या कोई लर्नर है, वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है हमारे प्रमोशन पे. और इस पिक्चर को हमें बहुत विविड और क्लियर, तो हमें सुनना है, वो वॉइसेस सुननी है, हमें कॉन्ग्रेचुलेट कोई कर रहा है, जेस्चर्स देखने किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करा जा रहा है, हैंडशेक किया जा रहा है, हग किया जा रहा है, क्लैप कर रहे हैं सब. तो हमें उस रियलिटी को पूरी तरह से फील करना है और कंटिन्यू करना है इसको फ्रीक्वेंटली, बार बार इसको हमें कंटिन्यू करना है. और जब हम फ्रीक्वेंटली इसको करेंगे अपने माइंड में, तो हमें जॉय एक्सपीरियंस होगा अपने आंसर्ड प्रेयर का. Your subconscious mind is a storehouse of memory. For a perfect memory, affirm frequently. The infinite intelligence of my subconscious mind reveals to me everything I need to know at all times, everywhere. जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी है. एक परफेक्ट मेमोरी के लिए हमें फ्रीक्वेंट बार बार भी अफर्म करना होगा कि जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है मेरे सबकॉन्शियस माइंड की, वो मुझे हर कुछ रिवील करती है, जो भी मुझे जानना चाहिए, दैट आई नीड टू नो एट ऑल टाइम्स एवरीवेयर. हर जगह हर समय मुझे जो जानना चाहिए वो रिवील करता मुझे मेरा सबकॉन्शियस माइंड. If you wish to sell a home or property of any kind, affirm slowly, quietly, and feelingly as follows. Infinite intelligence attracts to me the buyer for this house or property, who wants it and who prospers with it. Sustain this awareness, and the deeper currents of your subconscious mind will bring it to pass. तो जब अगर हमें कुछ सेल करनी होती है, कोई प्रॉपर्टी, कोई होम सेल करना होता है, तो उसके लिए एफर्मेशन दिया गया है कि जो भी फाइनाइट इंटेलिजेंस है वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी के लिए या हाउस के लिए बायर को अट्रैक्ट करके दे रहा है.
इस वायर को भी प्रॉपर्टी चाहिए, वो उसको ट्रांसफर करेगा। तो इस अवेयरनेस के साथ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के डीपर करेंट्स तक ये बात पहुंचा सकते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी, फिर जो वंडर वर्किंग पावर है, मिरेकल पावर है, वो सब हमें वो चीज पॉसिबल करके भी देगी। The idea of success contains all the elements of success. Repeat the word success to yourself frequently with faith and courage. जो आइडिया है सक्सेस का, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस आते हैं। हमें जो वर्ड है ना सक्सेस, इसको फ्रीक्वेंटली रिपीट करना है, खुद के लिए रिपीट करना है, और इसको पूरी फेथ और कन्विक्शन के साथ में रिपीट करना है। एंड यू विल बी अंडर अ सबकॉन्शियस कंपल्शन टू सक्सीड। और हम अगर ऐसा करेंगे तो हम उस कंपल्शन में चले जाएंगे, तो फिर हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकता। So we have completed chapter 11 here. Next day, tomorrow, we will start chapter 12. Thank you everyone for joining. You can share your feedbacks now. Feedbacks or takeaways. ओम शांति। Om Shanti Anuradha sister. ओम शांति देह में मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ, तो मैं तो फिर से यूट्यूब में देखूंगी आपके सेशन। लेकिन जितने पॉइंट्स आपने बताए हैं, तो मुझे ये लगा कि ऑथर बार बार कह रहा है कि हम विजुअलाइजेशन को यूज करें, जो भी हमें चीजें चाहिए, या फिर लाइक कोई प्राप्ति चाहिए, या कोई दर्द से मुक्ति चाहिए, या कोई कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करने चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको विजुअलाइज करने से वो जल्दी होता है। लाइक he is just simplifying a process of पुरुषार्थ। just you need to visualize कि वो हो चुका है, और फिर हम ऑर्डर करना होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को कि वो तो एक स्टोर हाउस है, हमें जो कुछ भी चाहिए वो अपने आप सोचने, अपने आप वो सिचुएशंस हमारे जीवन में आती जाएंगी। तो ये उन्होंने कहा कि लाइक instead of hard work of पुरुषार्थ, ब्लाइंड फेथ करने से, ब्लाइंड पाथ में जाने से, यू कैन यूज दिस टूल्स सो दैट यू कैन योर जर्नी विल बी इजियर। और फिर लेकिन इसके लिए फेथ चाहिए, और फेथ, विदाउट फेथ नथिंग वर्क्स। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया जितना आपने सुना। जी। और किसी के कुछ टेकअवेज है? ओम शांति सिस्टर। ओम थैंक यू शांति। सिस्टर। एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। या मैंने भी लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली, तो आई हैव जस्ट हर्ड दैट कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा सोते वक्त एक्टिवेट होता है, और जो उठते हैं तब हमारा एक्टिवेट होता है। तो जब हम उसको कमांड्स देते हैं उस टाइम में, तो वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग। जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे बिलीव्स, हम जिनको अपने लाइफ में अम, लाना चाहते हैं,
कोई भी है, whether it is for the career, wealth, health, any, तो जब हम उसको कमांड देते हैं तो वो उस चीज को एक्टिवेट कर देता है उस टाइम। एंड ऑथर ने ये भी बताया कि क्या क्या मेंटल ब्लॉक्स हैं ड्यूरिंग, व्हाट आर द मेंटल ब्लॉक्स टू वेल्थ। और राइटर ने ये भी कहा कि क्यों नहीं होता हमारा, कि क्या चीज भी, व्हाई नथिंग हैपेंस, बिकॉज जैसे एग्जांपल दिया कि इफ यू आर गोइंग टू से आई शैल नॉट बी एबल टू मेक माई दैट पेमेंट, before you get further than I shall, stop the sentence and dwell on the constructive statement that by day and by night I am prospered all in all my ways। मीन्स हमें वही माइंड को ही प्रोग्राम करना है कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, अफर्म करना है कि वो, स्पेशली सोते वक्त और उठने के बाद। थैंक यू सिस्टर। Thank you so much, sister. Hello, I think it's all about clarity. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, hello everyone. तो मुझे तो लगा इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी एंड जितना आप क्लियर होंगे ऑफ व्हाट आई वांट, उतना ही इजियर होगा टू गेट व्हाट यू वांट। So I have a little experience related to it. There was a time when I used to use this tool of visualization quite often. अभी भी use करती हूँ because in Delhi you get a lot of parking problem. तो when I was working as a counselor in a school, तो हमारे स्कूल के बाहर बहुत पार्किंग इश्यूज रहता था। तो एवरी डे बिफोर लिविंग होम आई यूज टू इमेजिन अ पार्किंग स्पॉट विच आई डिजायर्ड कि मेरी पार्क कार वहां पार्क हो। एंड it actually worked 100% of the times that I used to get the desired spot which I had visualized. And I still practice it and it works wonderfully. Wow. Thank you for sharing your experience. Thank you so much, everyone, for joining and sharing all your experiences and takeaways. We will end our session here. See you tomorrow.